Hello students, this is Professor Samita Shinde. We will begin with today's class with a continuation of issue of shares. This is lecture number 4. Now in the last class already we studied shares issued at par, shares issued at premium and shares issued at discount. Now as we studied from the beginning of this chapter that there is a classification of shares. Now we know that the term called subscription. Yes, तो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग हमें पता है. Now related with the subscription, yes, there are two more terminologies are included for your understanding. Now we will see one by one that this subscription is divided into two parts. One is your over subscription and second is your under subscription. Over यानी क्या? सब्सक्रिप्शन से ज्यादा. अंडर यानी क्या? सब्सक्रिप्शन से कम. इतना मीनिंग भी समझ जाएगा. So that is very good for you all. So over subscription means what? When the company receives applications for shares more than it wants to issue is called as a over subscription. कंपनी जब मार्केट में शेयर लाती है, अभी हमने स्टार्टिंग वाला जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें ये एग्जांपल देखा है, तो वहां पे हमें 300 सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, बट ये 300 से ज्यादा मिलता है, सो देन इट विल बी कॉल्ड एज अ ओवर सब्सक्रिप्शन. यानी सब्सक्रिप्शन से ज्यादा हमें अमाउंट मिला है तो उसे हम लोग कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन. नाउ द सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास अ रिजोल्यूशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. यहाँ पे जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना ही अमाउंट आपको रखना है, एंड देन व्हाटएवर यू आर हैविंग एक्स्ट्रा और ओवर टू सब्सक्राइब so that you have to return to your shareholders, and for that purpose board of directors pass a resolution. and किसके लिए resolution पास करते हैं? आपके allotment of shares के लिए. The applicants who are not allotted any shares or are allotted the shares less than their demand, the amount must be returned back within the stipulated period of time. ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि आपको ज्यादा अमाउंट मिला है, तो जो आपके एप्लीकेंट्स हैं उन लोगों ने द एप्लीकेंट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी शेयर्स और अलॉटेड द शेयर्स लेस देन देयर डिमांड, देन द अमाउंट शुड बी रिटर्न टू योर रिस्पेक्टेड एप्लीकेंट्स एंड विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम. तो आपके जो शेयर होल्डर्स है जिन लोगों ने ज्यादा पेमेंट किया है सब्सक्रिप्शन का, दैट अमाउंट शुड बी रिटर्न टू देम. डिमांड किया है सपोज ज्यादा और उससे उनको कम मिला है, ऑन दैट टाइम ऑल्सो दे हैव टू रिटर्न द अमाउंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्लाइड? दैट ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स whatever is your subscription amount, you're getting extra, you're getting more on that, so it will be denoted as your over subscription. Yes, now we will move some next concept related with the subscription is under subscription. What do you mean by under subscription? When the applications received are less than the shares the company is willing to issue, it is called as a under subscription. When the applications receive less than 300, for example मुझे 300 सब्सक्रिप्शन चाहिए बट मुझे 300 से कम सब्सक्रिप्शन हुआ, so it will be denoted as your under subscription. In this case, the shareholder get the shares they have applied for and the balance shares have to taken over by the underwriter as per the agreement. अभी आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा ही होगा who is the underwriter. Yes, तो अंडरराइटर कौन होता है? जो आपकी कंपनी के जो शेयर्स बेचे नहीं है मार्केट में, वो शेयर्स मार्केट में बेचने की जो गारंटी लेता है, रिस्क लेता है, हाँ खुद से, तो उसे हम लोग कहते हैं अंडरराइटर. तो यहाँ पे जो आपके शेयर्स अंडर सब्सक्राइब हो गए तो आपकी यहाँ पे गारंटी कौन लेता है रिमेनिंग शेयर्स बेचने की? अंडरराइटर. तो आई होप you have understood over subscription and under subscription. Now why I'm going to tell you all this.
because these are the important terms related with the methods of issue. Once you are able to understand these terms related with the methods of issue, you are able to understand the methods. Because हम लोग अभी बुक बिल्डिंग नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद ये बुक बिल्डिंग क्यों होता है, एफपीओ क्यों नहीं होता. सो ये सब चीजें हमें याद रखने के लिए we must understand that what is the meaning of shares issued at par, what is the meaning of shares issued at premium, what is the meaning of shares issued at discount, what do you mean by over subscription, what do you mean by under subscription. उसके बाद who is the underwriter. So this terminology is should be required for your better understanding, and for that purpose this mentioned at the beginning. Now we will move to your next important concept is underwriting. Now, I want to revise it again for you all. Underwriting is one of the most important functions in the financial world, wherein an individual or an institution undertakes the risk associated with a venture, an investment, or a loan in lieu of premium. तो अभी underwriting क्या होता है? Underwriting is a very important function in the financial world. तो अभी ये financial world में undertaking का काम कौन करता है? Either any person or any institution. Basically यहाँ पे banks they are working as a underwriter. इंश्योरेंस में भी ऐसे होता है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी अंडरराइटर लगता है. So what they are going to do? They are going to work for your company on the commission basis. जो ये काम करता है वो क्या लेता है? कमीशन लेता है, फीस लेता है. Now, mostly these lead merchant bankers or the book runners mostly involved over here in underwriter part. Now, underwriters are found in the banking, इंश्योरेंस एंड स्टॉक मार्केट. तो ये आपको अंडरराइटर कहाँ पे मिल सकते हैं? ये आपको मिल सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में, आपके इंश्योरेंस सेक्टर में एंड आपके स्टॉक मार्केट में. नाउ अंडरराइटिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द रिस्क एंड प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी. अंडरराइटिंग क्या होता है? अंडरराइटिंग इज डिटरमाइंड एज अ रिस्क. आप रिस्क बेयर करता है जो अंडरराइटर का काम करता है, ये कंपनी काम करती है. दे आर टेकिंग एज अ रिस्क एंड जो रिस्क लेते हैं उसके लिए दे आर टेकिंग एज अ चार्जेस. इट इज अ प्रोसेस सीन मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. आपका जो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हो पब्लिक ऑफरिंग से रिलेटेड, तो उसमें आप पढ़ने वाले हो आईपीओ. तो आईपीओ में ये अंडरराइटर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, wherein the investment banks the first buy or underwrite the securities of the issuing entity and then sell them in the market. Now ये क्यों चाहिए होता है? ये अंडरराइटिंग आपके स्टॉक मार्केट में या आपके आईपीओ में क्या काम करता है, ये हम लोग देखने ही वाले हैं. तो आईपीओ में अंडरराइटर का काम क्या होता है? जो हमने अंडर सब्सक्रिप्शन जो कंसेप्ट पढ़ा है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? आपके शेयर जितने बेचने चाहिए थे उतने मार्केट में सेल नहीं हुए, उनको वो बेचना है, सब्सक्राइब करना है. तो ये जो बचे हुए शेयर्स हैं वो कौन लेता है? आपका अंडरराइटर. और ये अंडरराइटर क्या बोलता है आपकी कंपनी को? either it should be the person, either it should be the your leading investment bankers. So they are going to take a guarantee that whatever is your leftover part, whatever is your leftover amount of shares, so we are going to sell in the market. Yes, so this is a job of your underwriting. Next is, who is an underwriter? किसको कहोगे? An underwriter is any party that evaluates and assume another party's risk for a fees. अभी यहाँ पे क्या करते हैं? दो पार्टीज होते हैं. एक पार्टी को शेयर्स मार्केट में बेचना होता है, हाँ, और दूसरी पार्टी क्या होती है? शेयर्स खरीदने वाली होती है. बट कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में ये शेयर्स बेचे नहीं जाते, तो ये शेयर्स के लिए एक पर्सन जो होता है वो क्या लेता है? रिस्क लेता है.
एंड ये रिस्क के अगेंस्ट वो क्या चार्ज करता है, फीस। Underwriters are critical to the financial world, including the mortgage industry, insurance industry, equity markets, and the common types of debt security trading. तो ये कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपका जो अंडरराइटर है, तो अंडरराइटर ये जो कंसेप्ट है वो आपकी इंश्योरेंस सेक्टर में होती है, आपकी इक्विटी में होती है, मॉर्गेज यानी लोन सेक्टर में होती है, बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पे जो कुछ आपकी जो डेप्ट कलेक्ट करना है या उसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी के लिए काम करना है, सो दिस अंडरराइटर्स आर गोइंग टू हेल्प यू। अ लीड अंडरराइटर इज कॉल्ड एज अ बुक रनर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बुक रनर। और आपके बुक में और एक कंसेप्ट दिया है ऑन पेज नंबर 43 दैट इसको और एक नाम है लीड मर्चेंट बैंकर्स। तो इसको क्या कहोगे, लीड मर्चेंट बैंकर यानी आपका बुक रनर होता है। यानी इंस्टीट्यूशंस एंगेज इन इशू मैनेजमेंट आइदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट टू बाय or sell the securities of an issuing company or act as a manager or provide advisory services. It is called as a lead merchant banker or the book runner. तो यहाँ पे सबको अंडरराइटर कंसेप्ट होपफुली समझ में आया है कि अंडरराइटर इज अ पर्सन और अंडरराइटर इज एन इंस्टीट्यूशन। मोस्टली ये रोल कौन प्ले करता है, आपके लीडिंग बैंक। फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक का नाम है, एसबीआई का नाम है। सो दीज आर द वेरियस बैंक्स, लीडिंग बैंक्स, दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ अंडरराइटर। अंडरराइटर का काम क्या होता है कि सपोज आपके मार्केट में जो सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर्स है, लोग शेयर मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं कंसेप्ट, तो हमारे शेयर्स मार्केट में बेचे गए नहीं है, तो वो क्या करता है, अंडरराइटर आपकी गारंटी लेता है कि ये जो रिमेनिंग शेयर्स है वो मैं मार्केट में बेचूंगा, और इसके लिए दे आर गोइंग टू चार्ज अ फीस। नाउ we will see one more important concept, that is the red herring prospectus, जो आपके बुक बिल्डिंग कंसेप्ट से रिलेटेड है। नाउ ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसका कवर ही रेड में होता है, इसके लिए हम लोग उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। अब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, फॉर दैट पर्पस यू मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपको प्रोस्पेक्टस सबको पता है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आपकी जनरल इंफॉर्मेशन कंपनी की, आपकी कंपनी के अकाउंट, आपकी कंपनी में जो कुछ होता है तो वो सब आपके प्रोस्पेक्टस में चाहिए होता है। और ये प्रोस्पेक्टस कौन पढ़ता है, यूजुअली आपके इन्वेस्टर। नाउ व्हाट इज दिस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी हम लोग जनरल डिक्शनरी मीनिंग हिंदी में देखेंगे तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मीनिंग है किसी का ध्यान मेन या इम्पोर्टेंट चीज से हटाकर किसी दूसरे लेस इम्पोर्टेंट चीज पे लेके जाना। बट यहाँ पे रेड हेरिंग का मतलब ये नहीं होता। शेयर मार्केट में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मींस इट्स अ ड्राफ्ट। आपका जो प्रोस्पेक्टस होता है उसका ड्राफ्ट होता है, और ये जो आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो क्या इंक्लूड करता है, तो हम लोग देखते हैं। The term red herring is derived from the bold disclaimer in red on the cover page of the preliminary prospectus. The red herring does not state a price or the issue size. यानी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन तो होती है, बट यहाँ पे कितना अमाउंट या आपकी शेयर्स के प्राइस क्या है, कितना अमाउंट है, कितनी वैल्यू है उसकी, ये सब यहाँ पे मेंशन नहीं करते। And for that purpose, this draft prospectus is called as a red herring prospectus. Once the registration statement becomes effective, the company disseminates a final prospectus. सेबी के पर अभी आपका मार्केट में आईपीओ जब आता है, तब आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो आपको पहले जब आपका प्रोस्पेक्टस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मार्केट में आने से पहले 30 डेज बिफोर सेबी के पास इसका ड्राफ्ट चेक करने के लिए देना होता है, और सेबी इसमें चेंजेस करती है। वंस द चेंजेस कैन बी अप्रूव्ड बाय योर कंपनी एज वेल एज योर सेबी, ऑन दैट टाइम यू कैन
issue your IPO in the market. Red herring prospectus is also called as a incomplete document where your size of the share capital, face value, or the issued value that should not be mentioned in the red herring prospectus. And for while you are going to issue raising your funds with the IPO, you need to have a draft of your prospectus. It is called as a DRHP. That means draft red herring prospectus. So therefore that purpose you need to have a permission from the SEBI itself. यहाँ तक सबको समझ में आया? Now I want to give one example. Last 4 months back, we know the hotel industry, food industry. In that food industry, one name you can named as a barbecue nation. This barbecue wants to raise a IPO in the market, and they issued a red herring prospectus, and this can be applied for the second time. In the year of 2017, barbecue is also on that time they want to issue their IPO in the market, but there is a certain problems in the red herring prospectus. On that time they are not going to issue their IPO, but in this year 4 months back they also applied for this your IPO concept, and SEBI is going to consider their future prospect, यानी उनके competitors कौन है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने दिया है बारबेक्यू नेशन का, तो उनके कंपिटिटर्स कौन है, उनका प्रोग्रेस क्या है. तो यहाँ पे दिस बारबेक्यू नेशन इज अ बेंगलुरु बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. They are having all over the India 138 branches, and in the foreign countries or out of India they are having 60 branches. Apart from this, they are having a profit almost more than 22% profit they're earning in the year of 2019. So this criteria can be considered while you are going to raise your IPO in the market, and the IPO amount is 1,000 to 1,200 crore rupees. So this is one of the example related with the red herring prospectus. And this जब आपकी कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं होती तब आपको IPO थ्रू ही आपको मार्केट में एंट्री मिलती है लिस्ट होने के लिए आपकी कंपनी को. सो दिस इज अ प्रोसेस. नाउ व्हाट आर द प्रोसेसेस वी कैन सी इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप एवरीवन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड red herring prospectus, over subscription, under subscription, then your underwriting concept. So this is a very important concept related with the next year methods of the issuing your shares. Thank you students, and please watch the videos for better understanding. Thank you.